नेशनल एंथम राष्ट्र गान के लिए आप सभी लोगों को अपने स्थान के खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मां सरस्वती की दीप प्रज्वलित करने के लिए मंच के सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण से अनुरोध करता हूँ कि मां सरस्वती जी का दीप प्रज्वलित कर सकें। उनके लिए Good afternoon to everybody. On behalf of ICAR Central Institute for Research on Buffaloes, I welcome all of you to this very, very special function today. Your Excellency Vice President Sahab and Your Excellency Honorable Madam, Your Excellency Honorable Governor of Haryana Sir, most respected our MOS Sri Kailash Chaudhary Sir, most distinguished Vice Chancellors, my director colleagues from ICAR Institutes, faculties CIRB of NIRCE, other staff members, students, and dear farmers, the purpose for whom we work relentlessly at this institute. I welcome you all with great joy and pride. Your Excellencies, your presence today in this function will not only boost the enthusiasm of the scientists and students working at this institute, but will also boost the morale of the millions of the farmers who have worked hard to earn the rare distinction for India, attaining and maintaining the status of highest milk producer in the world over the last 1.5 decades. Your Excellencies, I am aware of the very busy schedule of yours, so I have kept my welcome address very, very short. Established in 1985, CIRB Hisar is a unique institute of excellence not only for India, but possibly all over the world, which works exclusively on the buffaloes. Through the relentless effort of our scientists over the last 4 decades,
The institute has developed many technologies which have been commercialized now and are in the field. We enjoy a Center of Excellence status of ISO 9002 for improved buffalo germplasm production, and our semen laboratory recently got accredited by Government of India, enabling us to participate in germplasm exchange programs both nationally and internationally. Our very recent effort to exchange 15 high genetic merit buffalo bulls to the Government of Nepal under the initiative of our Honorable Prime Minister of India is a testimony of our scientific excellence. I think this is the way we truly cater to the resolution of the recently concluded G20 summit, One Earth, One Family and One Future. I welcome all of you once again for your excellencies for visiting our institute. The memories of your visit will be cherished over a long, long time to come. Thank you very much. धन्यवाद सर। आदरणीय श्री कैलाश चौधरी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप अपने आशीष वचन से हम लोगों को अनुग्रहित करें। आज इस बफेलो इंस्टीट्यूट में हमारे मध्य हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी, जिनका मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, और साथ ही मंच पर विराजमान हैं हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी बंदारू दत्तात्रेय जी, और हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय कमल जी गुप्ता जी, और उपस्थित सभी अधिकारीगण और सामने बैठे सभी यहाँ पर किसान भाइयों और मीडिया के बंधुओं। आज हम सब के लिए गौरव का विषय है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी हमारे इस इंस्टीट्यूट के अंदर पधारे, और आपकी हमेशा कृषि के अंदर रुचि रही है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि पिछले जब से आप उपराष्ट्रपति बने तब से लगातार कृषि के जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें अधिक से अधिक प्रवास इनके हुए हैं, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि आप स्वयं किसान के बेटे हैं, और किसान को प्राथमिकता में रखकर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जब भारत विकसित राष्ट्र बने तो उसके अंदर किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और ये इसलिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कृषि के अंदर जो देश की जीडीपी थी उसमें 50% से अधिक योगदान कृषि का था, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर जब विकसित भारत बने तो उसमें किसानों को हम नई तकनीकी भी दें, और उसके साथ ही किसानों को हम आत्मनिर्भर भी बनाएं। और उसके लिए जब किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है वो किसानों के लिए पशुपालन होता है। और पशुपालन हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे कृषि के फसल के माध्यम से हो, हमें किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ये हमारे प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में है। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि जिस गति के साथ में आज देश आगे बढ़ रहा है, चाहे कृषि के अंदर, आपको बता दूं कि आज विश्व में जब 2014 के अंदर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय विश्व में भारत जो था वो 10वें पायदान पर था, अर्थव्यवस्था में 10वें पायदान पर था। आज वो 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में पहुंचा है, और आने वाले 2-5-3 साल के अंदर ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर शक्ति बन जाएगा। तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि इसमें हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होगी, और उसमें पशुपालन की होगी, और जिसमें ये इंस्टीट्यूट है जो भैंसों के ऊपर अनुसंधान भी करता है, ब्रीडर यहाँ पर जिस तरह से तैयार की गई है सीमेन तैयार करके, और प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख से अधिक सीमेन है जो किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे किसानों के दूध के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। ऐसी वेराइटियां तैयार की है, और आज देश के अंदर जितना दूध का उत्पादन होता है उसमें लगभग 21% भैंस के दूध का उत्पादन हो रहा है। तो ये हमारे, चाहे उसके अंदर आज मांस की बात करते हैं, चाहे उसमें भी आज एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर देश बना है। तो कुल मिलाकर
आज मैं ये कह सकता हूं कि कृषि के अंदर हमारे दूध के उत्पादन को भी निश्चित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। लगातार साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं कि इसमें दूध के अंदर उत्पादन में भी वृद्धि हो और निश्चित रूप से अच्छी अच्छी वैरायटियां इसके ऊपर रिसर्च निश्चित रूप से जारी है और आगे पीछे जो रिसर्च हुए हैं उन्हीं का परिणाम है कि आज हम किसानों की इनकम भी बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय किसान आत्मनिर्भर बने, भारत विकसित राष्ट्र बने, इस दिशा के अंदर सरकार के और प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं। और हम आने वाले 2047 में जब हम भारत विकसित का सपना देखकर चल रहे हैं और वो निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत बनेगा तो किसानों के रास्ते हुए और किसानों के माध्यम से ही हम देश को विकसित भारत बनाएंगे। तो इस सब में हम सबके प्रयासों की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसमें हम सभी मिलकर अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं, यही मेरा आप सबसे कहना है। और पुनः मैं महामहिम साहब का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सब के लिए एक पाथेय होगा और आपका मार्गदर्शन के अंदर जो हमें आज आप यहाँ से मार्गदर्शित करेंगे उसको हम एक माध्यम बना के और किसानों के लिए आने वाले कल में हमारे देश के किसानों को कैसे और ताकतवर और पशुपालकों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसके लिए भारत सरकार की जो स्कीमें चल रही है उसमें कई महत्वपूर्ण स्कीमें जिनका मैं अभी समय का अभाव है लेकिन वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसकी आपको गाइडलाइन पहुंच जाएगी। लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि हम सब मिलकर आने वाले समय में अपने किसानों को, पशुपालकों को ताकतवर बनाना और देश को विकसित बनाना, ये हम सब मिलकर करेंगे। पुनः महामहिम साहब का और सभी अतिथियों का मैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं परम आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति जी को सभा को आशीर्वाद, मार्गदर्शन एवं आशीष वचन से अनुग्रहित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले तो अन्नदाता जो यहाँ हैं उनको मेरा प्रणाम। हरियाणा राज्य के महामहिम राज्यपाल बंडारू जी दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कमल गुप्ता जी, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर टी.के. दत्ता, डॉक्टर टी.के. भट्टाचार्य जी, विद्यार्थियों, साइंटिस्ट, देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में, देश के स्थायित्व में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। किसान चुनौतीपूर्ण वातावरण में हमारा अन्नदाता है। एक जमाना था तब अन्न की कमी इतनी ज़्यादा थी कि अन्न बाहर से आता था। यहाँ पर जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि अमेरिका से कैसे गेहूं आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी को नारा देना पड़ा, जय जवान जय किसान। यहाँ तक हालात थे कि उन्होंने देश की खाद्य समस्या को पूर्ति करने के लिए कहा कि सप्ताह में एक दिन शाम का उपवास रखो। हम कहाँ थे, अब कहाँ आ गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने किसान के लिए जो नारा दिया वो फलीभूत हो रहा है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। पर मेरा आपसे अनुग्रह है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है यदि अगर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसान से जुड़े हुए संबंधित प्रतिनिधि, किसान के हित को ध्यान में रखने वाला उद्योग ये ध्यान दे कि किसान जिस चीज़ को पैदा करता है, पशुधन है, कृषि धन है, उसमें किसान का रोल एक तरीके से खत्म हो जाता है और बाकी लोग उसको टेकअप कर लेते हैं। समय आ गया है जब किसान को सोचना पड़ेगा, किसान परिवार के कृषक पुत्रों को सोचना पड़ेगा
कि दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार यदि अगर आज के दिन कोई है तो कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। आप गेहूं को ले लो, चावल को ले लो, बाजरे को ले लो, मिलेट के अन्य को ले लो, थोड़ा जाएं तो सब्जी को ले लो, फल को ले लो, थोड़ा और आगे जाएं तो पशुधन में देख लो, दूध को देख लो। किसान को एक अच्छा मार्केटिंग मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा। किसान को अपने उत्पाद की मलाई खानी पड़ेगी। किसान पिसता रहे और फायदा अन्य लें, जो ले रहे हैं मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, पर किसान के परिवार में प्रतिभा है। किसान को 3 बातों पर खास ध्यान देना पड़ेगा जो मैं कहने आया हूं और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। किसान को कृषि मंडी के माध्यम से जो कृषि का व्यापार होता है उसमें भागीदारी बढ़ानी चाहिए। द फार्मर मस्ट एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोड्यूस। जब ये होगा तो किसान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा, किसान जो पैदा करता है उसमें वैल्यू ऐड नहीं करता है, उसमें वैल्यू ऐड कोई और करता है। किसान को भी प्रेरित करना चाहिए, संगठित तरीके से करना चाहिए। इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर वी मस्ट मोटिवेट आवर फार्मर्स that they should engage in value addition of their product. अब किसान के यहाँ सरसों होती है, वो तेल नहीं बनाता है। किसान के यहाँ आलू होती हैं, वो चिप्स नहीं बनाता है। मतलब किसान के यहाँ सब्जियां होती हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाता है। किसान का बेस्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक होता है, बड़ी मेहनत से करता है, he does not get a real value for money. So my very strong suggestion to Indian Council of Agriculture Research that we must have a course जिसमें किसानों के बच्चे बच्चियां उस कोर्स का फायदा ले सकें। How to market agriculture produce। ये इतना बड़ा व्यापार है, the dimension of it is very very large, astronomical है। उसमें किसान को पढ़ना चाहिए, किसान के बच्चे को पढ़ना चाहिए। आज आप नजर दौड़ाइए, आईआईटी का बच्चा, आईआईएम का बच्चा दूध का व्यापार कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है, इज्जत से कर रहा है। इतनी बड़ी पढ़ाई की, किसी भी संस्थान में वो करोड़ों रुपए साल के ले सकता था, पर वो दूध का व्यापार कर रहा है, वो सब्जी का व्यापार कर रहा है, वो दूध के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। हमारे तो घर में बात है, कहते हैं घर जाए का दिन गिनक दांत। आपने तो घर में प्रतिभा है, बचपनों देखा, हाँ कया करना चाहिए। अमूल हम उदाहरण देते हैं, अमूल है, हम क्यों नहीं ऐसा कर पाए कि जो अमूल ने किया है वो पूरे देश में बहुत जगह होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूर की सोचकर किसानों के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो नया खोला है, नया विभाग है, इसमें आप यदि समूह बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कितनी सहायता मिल सकती है। आप आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि तकनीकी का उपयोग करें, मार्केटिंग का करें, वैल्यू एडिशन का करें, और बाहर से यदि अगर कोई चीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट होती है उसमें भी पढ़ना चाहिए और एक्सपोर्ट में भी पढ़ना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ड्रोन का, कि गांव गांव में महिला समूह को ड्रोन दिया जाएगा। उस ड्रोन का वो उपयोग करेंगे ताकि कि फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का छिड़काव ठीक हो जाए, जानकारी सही समय पर मिल जाए। अब इतने बड़े बदलाव में यदि अगर हम हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो पीछे हट जाएंगे। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ की हड्डी है। किसान से ज्यादा मेहनत कोई उद्यमी नहीं कर पाता है। किसी भी व्यवसाय में कोई कितना ही लगे चाहिए, किसान के सामने जो चुनौती है वो और किसी के सामने नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा और समझकर उन्होंने ये कहा कि किसान को साल में 3 बार मदद मिलनी चाहिए। 6,000 रुपये किसान को साल में 3 बार मिलते हैं। अब जब देखोगे कि ये कितना मिल गया,
तो अब तक 2,60,000 करोड़ मिल चुके हैं। इससे एक व्यवस्था बनी है, एक तरीके से किसान ऊपर आएगा। तो सबसे पहले तो किसान अपने बच्चे बच्चियों को यह समझाए कि जब IIT वाले, IIM वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत प्रशिक्षित लोग हमारे व्यापार में पड़े हुए हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, गांव में जाता हूं, मुझे कई बार बड़ा झटका लगता है। गांव के अंदर सब्जी बाहर से आती है, सब्जी शहर से आती है। हमें एक संस्कृति का विकास करना चाहिए कि गांव कम से कम कृषि उत्पादन की दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट बने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल्फ सफिशिएंट बने। हम दूध तो शहर में दे देते हैं, कोई लेने आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, पनीर हम बाहर से लाते हैं। ऐसा क्यों है? ये उद्योग जो हैं, ये गांव के स्तर पर भी इन उद्योगों को किया जा सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारी पुरानी घानी होती थी, उसमें तेल निकलता था, बहुत अच्छा होता था। चलो कमर्शियल लेवल पर लोग जाएं, पर लेट अस मेक आवर विलेज सेल्फ सफिशिएंट। मेरा आपको यही कहना है कि ये जो संस्थान है, इसका सीधा लगाव दूध से है। अब दूध की मार्केटिंग जब होती है तो किसान पूरी तरह से ऐसा है, एक व्यवस्था उसी के तहत दूध जाता है। आप सोच सकते हैं कि हम कुछ लोग मिलकर, कुछ समूह कर कर, कुछ गांव मिलकर एक साथ सरकारी सहायता को लेकर सहकारिता का भाव जो सरकार ने दिया है और उसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, उसको करें। दूसरा, सरकार की बहुत बड़ी नीति है वेयर हाउसिंग की, गोदाम बनाने की, ताकि हम कृषि उत्पादन का ध्यान रख सकें, ख्याल रख सकें। अच्छी खासी सरकारी मदद मिलती है उसमें, पर मुझे किसान उसमें कहीं नज़र नहीं आता है। तो मेरे अन्नदाताओं से, किसान भाइयों से ये आग्रह करना है कि आप एक नई सोच के तहत ऐसी व्यवस्था करें कि ये नहीं सोचें कि हमारा बच्चा खेती में क्यों पढ़े। आपको सोचना पड़ेगा खेती में ही क्यों नहीं पढ़े। इससे ज़्यादा आर्थिक व्यवस्था आपकी सुधर ही नहीं सकती। इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि जिसने ज़्यादा पढ़ाई कर ली वो खेती की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ दोबारा आऊँगा। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। जब किसानों का कार्यक्रम है तो ये सफ़ेद क्यों दिख रहा है? सरकार की इतनी नीतियाँ हैं, पता लगना चाहिए लोगों को। यहाँ स्लाइड चालू हो जानी चाहिए थी 1 घंटे की, बिल्कुल ही। भारत जितना बदल रहा है होना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च विल राइज टू द ओकेजन। आखिर वो किसको बुलाना चाहते हैं? मेरा एक कृषक पुत्र के नाते ये कहना है कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो बड़े मन से आया हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं हो। कि कैसा लगा मेरे को कि मैं यहाँ पर आकर पौधारोपण कर रहा हूँ और वहाँ भी व्यवस्था नहीं है। वी हैव टू बी वेरी टेक्निकल, यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, थिंग्स शुड बी सीमलेस। यहाँ जो भी किसान आए उसको लगना चाहिए कि हम यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। ये कोई एक कार्यक्रम नहीं है। इस संस्थान में कोई भी आए उसको बहुत कुछ ग्रहण करना चाहिए, एकदम नजर आना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत कुछ हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक इन एग्रीकल्चर दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर दे मस्ट गेट फुल सपोर्ट। मेरा यही कहना आज के दिन कि मेरी बातों पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, और जो अन्नदाता यहाँ पर आए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। उनको मैं भारत की संसद में आमंत्रित करता हूँ। मेरे अधिकारी इसकी व्यवस्था करेंगे और वहाँ मैं आपसे खुलकर चर्चा करूँगा, मेरे मन की बात कहूँगा और आपको कहूँगा जो यहाँ उपस्थित हैं
तो ये बात एक तरीके से फैलेगी कि हम कितना मौका चूक रहे हैं। उस मौके को यदि आगे और चुका तो ग्रामीण विकास में वो बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सोच में, चिंतन में किसान है। उन्होंने जब राज्यसभा में मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो करा सकते थे कि ये बहुत बड़ा वकील है, करा सकते थे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ कह सकते थे कि पहले एमपी रहा है, एमएलए रहा है, केंद्र में मंत्री रहा है, पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहा है। उन्होंने नहीं कहा। ये मैं अन्नदाताओं से कह रहा हूं, उन्होंने मेरा परिचय सिर्फ और सिर्फ कृषक पुत्र के नाते दिया। मैं इस उत्तरदायित्व को निभाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूंगा। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगली बार जब यहां आऊंगा लंबे समय के लिए आऊंगा, मुझे ये परिसर बदला हुआ नजर आना चाहिए। किसान को लगना चाहिए कि मैं इस परिसर के अंदर घुसता हूं तो जानकारी मिलेगी, देखने मात्र से जानकारी मिलेगी, चर्चा से जानकारी मिलेगी, लिटरेचर से जानकारी मिलेगी, स्लाइड से जानकारी मिलेगी, दुनिया में क्या हो रहा है यह पता लगेगा। जब किसान की हम इतनी सेवा कर पाएंगे तभी अपने को संतोष होगा। और 2047 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं, 2030 तक हम तीसरी महाशक्ति हो जाएंगे। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। पहले हमने इंग्लैंड और फ्रांस को पीछे छोड़ा था, उससे पहले कनाडा को छोड़ा था। 2047 में भारत विश्व गुरु होगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा, विकसित देश होगा। और इस हवन में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी आहुति अन्नदाता की होगी, किसान की होगी, किसान परिवारों की होगी। किसान परिवारों को आज सामूहिक रूप से मेरी बात पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। कितनी अपने चुनौतियां आए, हम तो जन्म से चुनौती देखने वाले लोग हैं, जन्म से चुनौती को फेस करने वाले लोग हैं। जब बिजली मिलती है ना तो किसान को रात को दी जाती है। यह मैंने तब से देखा है जब से मैं बच्चा था, पहली बार बिजली आई थी। उद्योग को दिन में भी मिलती है। अब हालात बदल गए। 10 साल के अंदर किसान प्रधानमंत्री जी की 1 नंबर की प्रायोरिटी है। वो किसी भी प्रकार ये नहीं चाहते कि किसान मजबूत नहीं हो। उनकी उम्मीद है, आशा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि किसान के बारे में जो उनकी सोच है उसको हम सब मिलकर सार्थक करेंगे, मजबूती से करेंगे और एक बड़ा बदलाव लाएंगे। और जो सहकारिता विभाग नया बनाया है उसका भरपूर सबसे ज़्यादा फायदा किसान को मिलना चाहिए। यहाँ के विद्यार्थियों को जाकर यही करना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं अलग से। थैंक यू सो मच। मैं नेशनल एंथम के लिए आप सब लोगों को अपने स्थान पर खड़ा होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे